Hello everyone. From today we are going to start with the lead code series, which is Blind 75, in which we'll be solving a list of 75 questions which will give you a great start to your placement preparation. Okay, so the first question is the two sum problem, and I can also provide you with all the question links of the Blind 75 series in the description as well, and the solution to each problem as well. So today's questions going to be two sum problem. Given an array of integer nums and an integer target, return the indices of the two numbers such that they add up to a target. So basically हमारे पास एक nums करके integer है, so integer array है, and then we have a target which is again an integer, right? So हमें basically उन दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द नम्स इंटीजर आरे जो कि सम अप करते हैं टू टारगेट एंड उनके फिर इंडाइसेस को रिटर्न करना है. यू मे अज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस. तो हमें सेम इंडेक्स पे जो एक एलिमेंट है उसे हम लोग एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. सो इफ़ वी सी we have here three examples given. So our first example is your 2, 7, 11, 15. So let's say our nums integer has 2, 7, 11 and 15, and the target that we have is 9. So let's see. So let's take pairs, right? So 2 plus 7 gives us 9. So yes, we have it. Now what are the indices? The 0 and 1. So we need to return an array that consists 0 and 1. Seeing the next example, we have nums as 3, 2, 4, and then we have a target 6. So taking the pairs, 3 plus 2 gives 5, 2 plus 4 gives 6, hence we got 2 and 4. So the indices are 0, 1 and 2, so we should return 1 and 2 as our answer, right? So how can we do it? Basically there is a simple brute force approach in where we are going to apply two loops, that is one for I and other for j. Let's take the first example only. 2, 7, 11 and 15. तो इसमें हम अपने I को यहाँ पर रखेंगे और हम j को i+1 से चलाएंगे फॉर एवरी अदर इंटीजर टिल द लास्ट ऑफ इट, और फिर हम सबको ऐड करके देखेंगे 2 + 7, 2 + 11, 2 + 15, और जिसका भी आंसर मैच होता है उनके इंडाइसेस को हम एक वेक्टर में डाल देंगे एंड वी विल रिटर्न दैट वेक्टर एज द आंसर. बट दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, और यहाँ पे हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी. दैट वुड गो टू O(n²). और अगर आप क्वेश्चन को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो दे हैव सेड दैट कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट इज लेस दैन दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड another solution that is different from the brute force approach. Now what we can do is we are given the integer array as 2, 7, 11 and 15. Okay, this is our nums array. Okay, we'll be duplicating this array. Okay, and then we are going to sort it and use the two pointer approach. So let's take our duplicate array as same 2, 7, 11 and 15, and let's name it as array A, right? So let's perform all the operations on this nums and end में हम लोग इसके indices को compare कर लेंगे. ओके, सो हम लोगों ने अपना एरे बना लिया, डुप्लीकेट एरे ए. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने नम्स वाले को सॉर्ट कर दूँगी. नम्स को जब मैं सॉर्ट करूँगी तो लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर. ओके, सो जब मैं नम्स को सॉर्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा 2, 7, 11 and 15. It's by default already sorted, but if we see other arrays, so they are not sorted basically. Okay, so यहाँ पे already sorted है, not a problem. तो 2, 7, 11, 15 आ गया हमारे पास. So now we're gonna do is we're gonna keep a pointer over here and another pointer at the last. Now we are going to like take the
मतलब सम ऑफ दीज टू नंबर्स टू द टारगेट 2 + 15 जो है, इसका जो टारगेट है वो है 9, ठीक है, तो 9 टारगेट होना चाहिए। 2 + 15 हमारा 9 नहीं होता, वो ऑब्वियसली इट्स 17, सो इट इज़ ग्रेटर दैन 9। जब हमारे पास जो सम है वो ग्रेटर दैन 9 होगा तो हमारा जो पीछे वाला पॉइंटर है इसे हम लोग एक माइनस कर देंगे और हमारे फर्स्ट वाले पॉइंटर को एज इट इज़ वहीं पर रखेंगे। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि से सपोज यहाँ पे 2 + 2 आता विच इज़ इक्वल्स टू 4 विच इज़ ऑब्वियसली स्मॉलर दैन 9, तो यहाँ पर अब हम अपने जो हमारा लेफ्ट वाला पॉइंटर है जो कि अभी यहाँ पे था उसको हम +1 करते और इस वाले को हम यहीं पे रहने देते। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर अप्रोच। जैसे जैसे ये होगा हमारे पास 2 आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको इसी पर ही करके दिखाती हूँ कि हमें वो आंसर कैसे मिलेंगे। तो हमें डायरेक्टली मिल गया था, हमारे पास 2, 7, 11 एंड 15 है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 और 15 जो था वो ग्रेटर दैन 9 था, तो हमारा एक पॉइंटर यहाँ पे था, लेट्स से सपोज एल, और दूसरा पॉइंटर आर हमारा यहाँ पे था। तो अब क्योंकि वो बड़ा है आंसर तो हम लोग अपने राइट वाले को माइनस माइनस कर देंगे, तो हमारा राइट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हम करें अगर 2 + 11 विच इज़ 13 विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन 9, तो मैं वापस से अपने आर वाले पॉइंटर को एक माइनस माइनस कर दूंगी, तो मेरा आर जो है वो अभी यहाँ पर आ गया और मेरा एल अभी भी उधर ही है। तो अगर मैं अब यहाँ पे करूँ 2 + 7 वो आ रहा है हमारा टारगेट के बराबर। अब जैसे ही वो टारगेट के बराबर आ रहा है तो मैं एक वेक्टर बनाऊंगी आंसर करके और आंसर में अपने इन 2 नंबर्स को स्टोर कर दूंगी। नाउ यू विल थिंक कि हमें तो इंडाइसिस को स्टोर करना था, तो हम लोग पहले अपने आंसर को स्टोर करते हैं, दैट इज़ 2 and 7 बेसिकली द नंबर्स। उसके बाद जो हमने ये डुप्लीकेट ए बनाया है इसकी हेल्प से हम यहाँ पे 2 और 7 के इंडाइसेस फाइंड आउट करेंगे और उन इंडाइसेस को एक नए वेक्टर विच इज़ योर रिजल्ट उसमें स्टोर कर देंगे। तो इसके लिए भी हम एक लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 का जो है हमारा इंडेक्स दैट इज़ 0 एंड 7 का इज़ 1, तो हमारा 0 and 1 वुड बी आर आंसर, दैट इज़ रिजल्ट, राइट। सो हम ऐसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। सो नाउ लेट्स जस्ट कोड इट आउट सो दैट हमारा साथ के साथ होता भी रहे एंड वी वोंट गेट पजल्ड अप। सो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर एन ले लेते हैं विच इज़ बेसिकली दी साइज ऑफ नम्स, राइट। उसके बाद वी गोना टेक basically a duplicate vector to our nums that is the original integer vector। तो यहाँ पे हमने वेक्टर int a ले लिया और इसको हमने किसके बराबर रख दिया, नम्स के, सो दैट इट गेट्स डुप्लीकेटेड, सॉरी इट्स नम्स, राइट। नाउ वी गॉट टू सॉर्ट आवर नम्स एरे। तो हम लोगों ने सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड कर दिया, राइट। नाउ हम लोग एल पॉइंटर बनाते हैं और एक आर पॉइंटर बनाते हैं। तो इंट एल को हम लोग रखने वाले हैं 0th इंडेक्स पे और हमारा जो राइट पॉइंटर होगा उसे हम रखेंगे n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पे जो कि हमारे नम्स का है, दैट इज़ ऑन दी 3rd इंडेक्स, राइट। सो अब हम यहाँ पे एक आंसर बनाएंगे वेक्टर जिसमें हम लोग बेसिकली उन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे जहाँ पे हमने यहाँ पे 2 और 7 को स्टोर किया था। तो ये वाला आंसर वेक्टर अब हम बनाने वाले हैं। तो ये आंसर वेक्टर हम लोग बनाएंगे। सो वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक लूप लगाएंगे जिसमें हम लोग अपने इस टारगेट का सम अप को फाइंड आउट करेंगे और ये आर को माइनस माइनस करेंगे, आर को प्लस, एल को प्लस प्लस करेंगे बेस्ड ऑन द रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग बाय समिंग अप द 2 वैल्यूज एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं जब तक एल जो है वो छोटा है आर से तब तक हम इस लूप को चलाने वाले हैं। और इसमें हम अब देखेंगे, अब हाँ एक सम ले लेते हैं, इंट सम, जिसमें हम लोग लेंगे nums of L, right, and then plus nums of R, so it basically contains the sum of the 2 numbers at the index L and R, right। and उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा जो सम है अगर वो डबल इक्वल्स टू हमारे टारगेट के तो हम डायरेक्टली अपने इन वैल्यूज़ को अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे, आंसर डॉट पुश बैक किसको, नम्स ऑफ एल को, राइट, और आंसर डॉट पुश बैक नम्स ऑफ आर को, राइट। सो हमारी ये जो 2 वैल्यूज़ थी
विच वर व्हाट 2 and 7। ये जो हमारे पास 2 and 7 वैल्यूज़ आ गई थी, इसको हम लोगों ने आंसर में पुश बैक करा दिया, ठीक है। और फिर हम लोग अपने लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देते कि अगर हमें वो 2 नंबर्स मिल जाते हैं तो हमें और आगे नहीं जाना है लूप के अंदर, तो हम लोगों ने ब्रेक करा दिया। अब हम लोग लगाएंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ में आएगा कि अगर हमारा जो सम है, राइट, अगर वो बड़ा है हमारे टारगेट से, विच इज़ विच कंडीशन गाइज, इट इज़ दिस कंडीशन। ये 2 + 15 जो था ये बड़ा था 9 से, ये 2 + 11 भी जो था ये भी बड़ा था 9 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने राइट वाले को माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने आर पॉइंटर को माइनस माइनस कर दिया। और जब हमारा इट्स लाइक कि जो हमारा सम आया है अगर वो टारगेट से छोटा है तो हम लोग अपने एल को प्लस प्लस कर रहे थे, यानी लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस कर रहे थे, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये लूप बन गया है व्हाइल वाला। अब हम इससे बाहर आते हैं और अब हम करते हैं अपना ये बाकी का काम, जिसमें हमें अपना आंसर वेक्टर तो मिल गया, अब हमें अपना रिजल्ट वेक्टर बनाना है, राइट। सो ये रिजल्ट वेक्टर बनाने के लिए हम लोग एक सबसे पहले रिजल्ट को बना ही देते हैं, वेक्टर इंट, और रिजल्ट हमने बना दिया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद वी गोना मेक अ लूप फॉर int I equals to 0, I goes till the end and I plus plus. Then we are gonna compare a of i is the duplicated vector। अगर डुप्लीकेट वेक्टर का जो ith इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट है, अगर वो हमारे आंसर ऑफ मतलब किसी से भी इन 2 और 7 में से किसी के भी इक्वल है, कौन सा, ये वाला, इस ए में से कोई भी एलिमेंट हमारा अगर आंसर के किसी भी एलिमेंट के बराबर है तो उसे हम रिजल्ट के उस इंडेक्स को हम रिजल्ट के अंदर डालेंगे, राइट। तो इस लूप में हम ये कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी इफ ए ऑफ आई जो है अगर मेरा वो डबल इक्वल्स टू है आंसर ऑफ 0 के, तो मैं क्या कर दूँगी, मैं रिजल्ट में पुश बैक कर दूँगी रिजल्ट डॉट पुश बैक आई को, ठीक है। तो वो इंडेक्स पुश बैक हो गया। अभी तक हमारे पास सिर्फ आंसर्स थे। अब क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए था, मतलब बेसिकली रिजल्ट जो चाहिए था वो इंडाइसेस का चाहिए था, तो हम लोगों ने ऐसा किया है। एक और कंडीशन लगा देंगे एल्स इफ, अगर वो पहले वाले के बराबर नहीं हुआ, राइट, तो वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के बराबर होगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हमारे पास आंसर में, तो इसके बराबर हम लोग चेक करेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग रिजल्ट में पुश बैक करा देंगे इसको, आई को अगेन, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न करवा देंगे अपने रिजल्ट वाले वेक्टर को। लेट्स रन आवर कोड। ओके, आंसर डॉट पुश बैक, yeah, so the 3 test cases are accepted. Let's submit it. I hope it works. Yes, so it's done and it was a very good approach. Brute force भी है but वही it takes more time, complexity it has more time complexity, and ये जो हमने अभी कोड किया है इसकी इतनी ज़्यादा complexity नहीं है, so it is a good one for this question, and that's all for it. You can understand this approach again by pausing the video and restarting the video, and then you can code this question by yourself to get a better understanding for the same. So that's all for the video. Let's meet in for the next question. Thank you.